નમસ્કાર, બોડી લાઈવ પ્રાઇમ ટાઈમમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરીશું આમ આદમી પાર્ટીના બજાર સંવાદની, સાથે સાથે જે મિનિસ્ટર આવ્યા હતા, કેબિનેટ મિનિસ્ટર, અને તેઓએ બાઇટ આપી મીડિયાને, તેની પણ વાત કરીશું। સાથે સાથે તેઓએ બજાર સંવાદ કર્યો અલીપુરા ચોકડી ઉપર। કોઈ પાર્ટીએ અલીપુરા ચોકડી પર મિટિંગ કરી હોય, લગભગ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે પ્રસંગ હશે। તે સાથે તેઓએ બોડી લાઈવ સાથે એક્સક્લુઝિવ વાત કરી છે। આપણે એ તમામ દ્રશ્યો પણ જોઈશું આ પ્રાઇમ ટાઈમમાં। સાથે સાથે બોડેલી એસટી ડેપોમાં વિદ્યાર્થીઓ સહિત પેસેન્જરો રજડી પડ્યા, તે પણ દ્રશ્યો જોઈશું। સર્વપ્રથમ આપણે એ વાત કરીએ તો જે બોડેલી એસટી ડેપોની વાત છે, તો 27 એસટી બસો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સેવામાં, એમની સભા માટેની સેવામાં ગઈ હતી। પેસેન્જર્સ ત્યાં મોકલવામાં હતા અન્ય પ્રાંતમાં બસોને। એ બસો 27 બસો બોડેલી ડેપોમાં કુલ લગભગ 55 થી 60 જેટલી બસોનું ભારણ છે, એટલી બસો છે ત્યાં। તેમાંથી અડધી બસો જતી રહેતા અહીંયા પેસેન્જરો રજડી પડ્યા। બાળકો જે વિદ્યાર્થીઓ છે અપડાઉન કરવાવાળા, તેઓ પણ રજડી પડ્યા હતા અને એસટી ડેપો ખીચોખીચ ઉઘરેલો પણ નજરે પડ્યો હતો। આ બસો આજે રાતે આવવાની છે, અત્યારે આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ હશે, આવતીકાલથી બધું રેગ્યુલર પણ થઈ જશે। 2 દિવસનો આ મામલો હતો। 2 દિવસ બસો આ રીતે ત્યાં જવા અને આવવામાં તકલીફ પડવાની હતી અને એને લીધે જે પેસેન્જરોને જે તકલીફ પડી છે તેની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે આ જ્યારે પણ આ પ્રકારનો મામલો હોય ત્યારે બીજી કોઈક પણ વ્યવસ્થા પેસેન્જર પરિવહનની કરવી જોઈએ। આવું થતું નથી। પેસેન્જરો બિચારા ક્યાં જાય, આની ચર્ચા સ્વાભાવિક આપણે જ્યારે આમ વ્યક્તિને તકલીફ પડતી હોય એની ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા છીએ અને લોકોની તકલીફોને પણ વેદનાને સરકારે અને તંત્રે વાચા આપવી જોઈએ અને સમજવી જોઈએ। તસવીરમાં આપણે એ પેસેન્જરો, જે વિદ્યાર્થીઓ છે, બાળકો છે, તકલીફો પડી તે પણ દ્રશ્યો જોયા। સાથે આપણે અરવિંદ કેજરીવાલની પાર્ટી છે, આમ આદમી પાર્ટી, તેણે બોડેલીની અંદર એક વિશાળ રીતે, વિશાળ તો નથી સભા, પરંતુ એક ગ્રાઉન્ડ ઝીરો ઉપર પબ્લિકનું એટેચમેન્ટ પેદા થાય એના માટે અલીપુરા ચોકડી ઉપર એક નાની સભા કરી હતી અને આ સભામાં એવો સંબોધન પણ કર્યું હતું જે મિનિસ્ટર હતા અમન ચોપડા, એ અમન ચોપડા સાથે તેઓએ જે સંબોધન કર્યું, તો પછી આપણે સંબોધનને પણ સાંભળીએ અને ત્યારબાદ તેઓએ જે અલીપુરા ચોકડી પર અમે બોડેલી લાઈવ સાથે જે ચર્ચા કરી છે તેઓને અમે સવાલ કર્યા છે। જે બેનરો લગાવવામાં આવ્યા તે સંદર્ભે અને બેનરો સંદર્ભે જે અરવિંદ કેજરીવાલે પ્રતિક્રિયા આપી તે બાબત, ત્યારબાદ એના આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ છે ગોપાલ ઇટાલિયા, તેઓની વિરુદ્ધમાં આ જે ઝુંબેશ ચાલી અને તેઓને મહિલા આયોગ દ્વારા નોટિસ પણ આપવામાં આવી, એ અંગે પણ અમે પ્રશ્ન પૂછ્યો। સવાલ अलग હતો, जवाब बीजा आया। शू बात थी आपने सांभो। देखिए, लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों का राज लोगों द्वारा लोगों के लिए। लेकिन पिछले लंबे समय से जो गुजरात में चल रहा या जो हमारे पंजाब में चल रहा था, वो लोगों का राज नहीं था, लोगों के ऊपर राज किया जा रहा था। आज अगर गुजरात की बात कर ले, मैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने यही कहा कि हम लोग जो पंजाब में बैठे हैं या बाकी प्रांतों के लोग जो लंबा समय सुनते रहे कि गुजरात मॉडल, पता नहीं गुजरात का कौन सा डेवलपमेंट का, तरक्की का मॉडल है। मैं तो जब अहमदाबाद से यहाँ तक आया, जो सड़कों का और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हालात थे, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ का मॉडल कोई डेवलपमेंट का मॉडल है। वो सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को भ्रमित करने का मॉडल है और इसके अलावा वो कुछ नहीं रहा। वो गुजरात जो पूरे देश में बिजनेस की, व्यापार की हब है, गढ़ है यहाँ पे, अगर उसके लिए भी आज आम आदमी अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए तरसेगा, अगर उसके लिए भी अगर आम आदमी अपने परिवार की, अपनी माता की सेहत और स्वास्थ्य का इलाज करवाने के लिए तरसेगा, उसके लिए भी अगर एक किसान अपने खेत को पानी लगाने के लिए तरसेगा, उसके लिए भी अगर आम व्यापारी एक अच्छी सम्मान वाली, एक अच्छी सम्मानीय जिंदगी व्यतीत करने के लिए तरसेगा, उसके लिए भी अगर
आम दफ्तरों में जाके लीडरों के और अफसरों के हाथों भ्रष्टाचार का शिकार होने के लिए तरसेगा, तो मेरे हिसाब से तो जो बिल्कुल फेल मॉडल रहा है, जो ये लोग जो भाजपा वाले आज तक बेचते आए पूरे देश को। आज जो हालात, जितना मेरे को समझ आया है, जो पंजाब के हालात थे, कुछ वैसे ही हालात जो आज गुजरात के बने पड़े हैं। अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है, और जो आम लोगों की तरस योग हालत बनी हुई है, उसका कारण, उसकी जड़, उसका मूल रूप से जड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, भ्रष्टाचार। और आज देश में अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है, आज देश में अगर बच्चों को सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देनी है, अगर आज सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर और बिल्कुल फ्री इलाज देना है, अगर आज किसान को 12 घंटे बिजली देनी है, अगर आज व्यापारी को सम्मान वाली जिंदगी देनी है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल है, अरविंद केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल, जो दिल्ली के लोगों ने पिछले 8 साल से अपनाया हुआ है। और उस मॉडल को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वासी ही नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया आज खड़े होकर देख रहा है कि किस तरीके से एक आम घर से उठे हुए एक व्यक्ति ने ऐसा मॉडल देश को दिया है कि जिसको आज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडरशिप जो है दुनिया की, वो आके देखती है। आज पंजाब की बात कर ले, 2017 में हम ऑपोजिशन में आए पंजाब में, हम लोगों ने लोगों के बीच जाके मेहनत की, और किस तरीके से अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस वाले लंबे समय से पंजाब को लूट रहे थे, उसकी बात की, हम लोगों की शिक्षा की बात की, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की। लोगों ने हमें, पंजाब की 3.25 करोड़ जनता ने ऐसा मतदान दिया, ऐसा फैसला दिया, ऐसा मैंडेट दिया कि 117 में से 92 सीट, 92 सीट जो है, वो आज तक का इतिहास उन्होंने बना दिया। ये काम अगर पंजाब के लोग कर सकते हैं, तो अब समय आ गया है कि गुजरात के लोग भी ये करें। क्योंकि हम पंजाब की जब बात करते हैं, तो पिछले 7 महीने में अभी हुए नहीं है सरकार बने हुए, लेकिन जितने भ्रष्टाचार करने वाले लीडर थे या अफसर थे, आज वो जेल में सलाखों के पीछे अपने कुकर्मों का जो फल है वो भुगत रहे हैं। उन्होंने जो पाप किया वो भुगत रहे हैं। और सरकार वो होनी चाहिए जो लोगों की तरफ जवाबदेह हो, जो लोगों के बच्चों की शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके बड़ा लंबा समय जो इन्होंने राज कर लिया। और मेरे को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अगर कोई भाजपा वाला साथी सुनता हो, या शायद वो घर अभी इस आराम से बैठे हैं कि इनका क्या, आम आदमी का क्या। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जब आम आदमी ठान लेता है कुछ, तो उसके सामने बड़े बड़े जो बांध है वो टूट जाते हैं, जब आम आदमी का सवाल उठाया जाता है। तो इस करके मेरी विनती आपसे ये है, मैं तो आज आया हूं यहाँ पे, कुछ दिन और रुकूंगा, फिर से दोबारा आऊंगा। मेरे जैसे और भी बहुत सारे साथी जो है, अरविंद केजरीवाल जी खुद आते हैं, मनीष जी आते हैं, जिन्होंने दुनिया में शिक्षा का मॉडल जो है वो स्थापित करके दिखा दिया। हम लोग आएंगे, पंजाब से बड़े मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने वापस अपनी स्टेट में चले जाना है। और उसके बाद यहाँ का जो फैसला हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं आपके पास कि आपको अलग जगा सके, मशाल जला सके। रास्ता पंजाब ने देख लिया, पंजाब से पहले दिल्ली ने देख लिया। आज अगर पूरे मुल्क में अगर कोई भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोई क्षमता रखता है, कोई ताकत रखता है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल रखता है। अगर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य देने की कोई जरूरत रखता है, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल रखते हैं। अगर हर घर को 300 यूनिट दिल्ली और पंजाब की तरह
फ्री देने की बिजली की वो जरूरत रखता है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल रखते हैं। अगर हमारी माताओं बहनों को 1000 रुपया प्रति महीना भत्ता देने की बात करते हैं, सम्मान भत्ता देने की बात करते हैं, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल करते हैं। सो ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक ईमानदार सरकार कर सकती है। मैं कह रहा था कि जो हम लोग आए आके बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फैसला जो है वो आप भाइयों, गुजराती भाइयों, आप लोगों ने करना है। मेरे कहने पे नहीं करना या किसी लीडर के कहने पे और नहीं करना, आपने करना है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की आंखों में देख के उनके भविष्य के लिए करना है, उनके भविष्य के लिए करना है। और तो हमें ना झूठ बोलने की, लारा लगाने की आदत है आम आदमी पार्टी में, ना बोलते हैं ना परमात्मा कभी बुलवाए। अगर तो आप लोगों को मैं एक ही बात में अपनी बात को समाप्त करूंगा, विराम दूंगा कि अगर तो गुजरात के आम लोगों को लगता है, मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों को लगता है कि 75 साल वोट डालने का हक जो है आपको वापस मिल गया, आपको लगता है कि हमने इतना लंबा समय 32 साल कांग्रेस और फिर 27 साल बीजेपी, कि आपको अपनी वोट का हक मिल गया जितना मिलना चाहिए था। आपको लगता है कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा स्कूलों में मिल गई, आपको लगता है कि अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं अस्पताल में जाके, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी इससे बेहतर और कोई सरकार नहीं कर सकती, तो बेशक जो है फिर इनके चंगुल में दोबारा फंस जाइए भाजपा वालों के। लेकिन अगर नहीं लगता तो एक मौका बदलाव के नाम के ऊपर अरविंद केजरीवाल की साफ नीयत और नीति और ईमानदार राजनीति के नाम के ऊपर घर घर जाइए और लोगों से हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि जहां लोगों को 32 साल देख लिया, जहां लोगों को 27 साल देख लिया, एक मौका जो है वो अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को अपने बच्चों की खातिर, अपने परिवार, अपने घर की खातिर आप एक मौका देके देखिए। अगर हम लोग नहीं काम करेंगे, अगर सरकार नहीं काम करेगी, तो ये कौन सा कुंभ का मेला है जो 14 साल आना नहीं है, 5 साल बाद फिर वोट आ जानी है, फिर फैसला बदल लीजिएगा। कब रोकते हैं हम? और पूरे देश में एक बात याद करा दूं आपको कि पूरे देश में सारी के सारी राज्यों में और इतना लंबा समय आज तक अगर इलेक्शन के दौरान, चुनाव के समय, अगर किसी एक प्रांत में किसी एक पार्टी ने, किसी एक लीडर ने जाके लोगों में झूठे वादे नहीं किए, सिर्फ एक बात कही अरविंद केजरीवाल जी ने आज से 2 साल पहले जो दिल्ली में चुनाव हुआ था कि भाइयों कि अगर मैंने दिल्ली में काम किया है मुझे को मौका दे दीजिए, अगर नहीं काम किया तो बेशक ना दीजिए। और इतना कहने से ही दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीट जो है वो अरविंद केजरीवाल को दे दी। और यही काम मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यही काम 2027 में जब दोबारा 5 साल आम आदमी पार्टी की सरकार, आप लोगों की खुद की अपनी सरकार रह जाएगी, तो फिर से 27 में अरविंद जी और यहाँ के मुख्यमंत्री आएंगे, आपके अपने मुख्यमंत्री, और यही बात, एक ही बात की कैंपेन होगी, एक ही बात की स्पीच होगी कि अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है तो वोट दे दीजिए, वरना बेशक न दीजिए। और सारे के सारे गुजराती भाई आम आदमी पार्टी को फिर से जिताएं, क्योंकि 5 साल में काम उतना हो जाएगा जितना पिछले 75 साल में नहीं हुआ, ये मैं गारंटी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे दिया। मैं फिर से सिर्फ और सिर्फ विनती इतनी करूंगा कि हम लोग जो पंजाब से आ रहे हैं या बाकी जगह से आएंगे, हम तो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाने की बात कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ अपील कर सकते हैं कि भैया इनके चंगुल से निकलो। अगर शायद ये लोग सोचते हो कि ये थोड़े से लोग हैं और क्या कर लेंगे हमारा, लेकिन जब आम आदमी अपनी ठान लेता है, जब दरिया ठान लेता है कि मैंने अपना रास्ता बनाना है, तो कोई जितने मर्जी बांध बना ले वो रोक नहीं सकता उसको। ये आम आदमी का दरिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। નમસ્કાર, બોલાવવામાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું બરકતુલ્લા ખત્રી. આપણે સાથે પંજાબના મંત્રી છે, પંજાબના ને સર? जी હા, અમન અરોરા સર. હવે અહીંયા બજાર સંવાદ કાર્યક્રम પણ થઈ રહ્યો છે, એમણે બાઇટ પણ આપી છે मीडिया ने. हम बात करेंगे उनसे, हिंदी समझते हैं तो ज़्यादातर लोग हमारे भी हिंदी समझते हैं. अभी चौराहे पर अलीपुरा चौकड़ी पर बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जमा है. हम उनसे बात करेंगे क्या आप जब बोरली का दौरा किया आपको क्या लगा, कैसा समझते हैं आप, क्या आपको यहाँ से जो क्या वेटेज मिलेगा वोट्स का, क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ, मेरा 30 साल का तजर्बा है. मैं एक बात आपको बता दूं कि जब लोग ठान लेते हैं बदलाव लाने की तो वो बदलाव होके रुकता है. जिस तरीके से पहले कांग्रेस ने 32 साल और फिर उसके बाद भाजपा ने 27 साल गुजरात को गुमराह किया है, उस हिसाब से आज गुजरात के सभी भाई बहन बुज़ुर्ग माताएं मन बनाई बैठे हैं कि इस बार उन्होंने जो मौका देना है वो अपने बच्चों के भविष्य को देख के देना है. और बच्चों का भविष्य जो है, अगर अच्छी शिक्षा चाहिए, अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए सरकारी अस्पताल में, अगर भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए, अगर किसानों को सम्मानीय ज़िंदगी चाहिए, व्यापारियों को अच्छा व्यापार करने का माहौल चाहिए, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही अगर कोई मौका बचता है, कोई दे सकता है, तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी दे सकते हैं. सो इस करके मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक क्लीन स्वीप जो है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हक में इस बार होने वाली है. तो सर ये जो बैनर्स लगे थे उसके बारे में क्या बोलेंगे? बैनर्स जो लगाए गए थे, केजरीवाल साहब आए थे उस दौरान में, फिर आकर के उन्होंने नाइट में बाइट भी दिया था, वो मीडिया को चर्चा भी की थी. जो बैनर्स लगे थे केजरीवाल साहब के खिलाफ, नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो एक ही बात कहनी चाहूँगा कि ये जो विरोधी हैं, ख़ास तौर पे भाजपा के साथी, ये लोगों की डेवलपमेंट की बात नहीं करते, ये सिर्फ़ और सिर्फ धर्म की बात करते हैं. ये धर्मों मज़हबों के नाम के ऊपर वोट को बांटते हैं और राज करते हैं. अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का एक ही राजधर्म है, और राजधर्म है कि कैसे भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना है, कैसे अच्छी शिक्षा देनी है, कैसे अच्छा स्वास्थ्य देना है, कैसे गुजरात को समृद्ध बनाना है. उनकी ये राजनीति है. सो इस तरीके के जो विरोध हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के सबसे पहले दिल्ली में होते थे, लेकिन जब 5 साल लोगों ने राज देख लिया तो मुड़ के वहाँ से तब तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए. जब पंजाब में भी इस तरीके के विरोध जो हैं अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव से पहले करते थे बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस वाले, लेकिन वहाँ भी उनको मुँह की खानी पड़ी. गुजरात के जो भाई हैं वो सबसे अगर कोई सेकुलर अगर कोई साथी हैं तो गुजराती भाई हैं जो अपनी मेहनत करने में विश्वास रखते हैं. सो ऐसी बातों में, गुमराह कुन बातों में वो नहीं आएंगे. वो अपने बच्चों के आंखों की में उनका भविष्य देख के वो फैसला करेंगे. गोपाल इटालिया को कोई महिला आयोग ने कुछ नोटिस दिया है, कुछ बात कही थी उन्होंने पॉलिटिकल, यहाँ पर जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने बहुत उसका किया है, तो क्या बात है उसकी, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए आप, एक सेकंड सुनिए, मेरी बात सुनिए. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाजपा वाले क्या कहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है. आम जनता क्या कहती है उसकी वैल्यू है. वोट तो आम जनता की है ना जी. आम लोगों ने अपने भविष्य के लिए वोट डालनी है. बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले आके जो कुछ बोलते रहे, इनको 27 साल हो गए गुमराह कर रहे हैं. इनको 27 साल हो गए यहाँ पे राजभाग करते हुए. तो क्या गुजरात के लोगों को उनका हक मिल गया? ऐसी गुमराह करने वाली बातें ये करते आए हैं और करते रहेंगे. मेरी सिर्फ विनती इतनी है कि गुजराती भाई अपने दिल पे हाथ रख के बच्चों की आंखों में देख के फैसला करें. वोटर जब वोट डालने जाता है, हम बात अभी भी होती है, माहौल भी बनता है, आम आदमी का भी बनता है, दूसरी पार्टियों का भी बनता है, लेकिन जब वोटर वोट डालने जाता है
बीजेपी को वोट दे के आ जाता है, ऐसा क्यों? आपकी बात नहीं। वो पिछले देखिए पहले यही काम एक सेकंड पहले यही काम गुजरात के भाई वोटर गुजरात के 32 साल कांग्रेस में हक में करते रहे। फिर अब यही काम वो 27 साल से वो भाजपा के हक में कर रहे हैं। मैं इतना गारंटी करता हूँ कि इन दोनों को जैसे 60 साल हो गए, एक बार वो आंखें बंद करके झाड़ू का बटन दबाएं, अगले आने वाले 60 साल वो झाड़ू का बटन नहीं दबाते रहेंगे। आप कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं सर? मैं वहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और पब्लिक रिलेशन। ठीक है जी, धन्यवाद। થેન્ક યુ સર, આપકા ધન્યવાદ। આપણે સાંભળ્યું કે મંત્રી સાહેબ છે તેઓ જાતે અહીં આવ્યા છે બોડેલીની અંદર, એમણે આ સભા કરી બજાર સંવાદ। તેઓએ ત્યાં સર્કિટ હાઉસની અંદર જે મિટિંગ કરી હતી, પત્રકારો સાથે જે સંવાદ કર્યો, ત્યારબાદ તેઓએ બજાર સંવાદ કર્યો છે। બજાર સંવાદની અંદર પણ મોટી સંખ્યામાં લગભગ 200 થી 300 કાર્યકરો છે તેઓની સાથે, અને બીજા લોકો ગામના લોકો છે। આ પ્રકારે અલીપુરા ચોકડી પર સભા ભરી એવો પ્રથમ પ્રસંગ બન્યો છે। અને મંત્રી છે આ પંજાબના અમન અરોરા, તેઓના આવવાથી પણ કાર્યક્રમમાં ગરમી આવી ગયેલી નજરે પડી રહી છે। થેન્ક યુ। જો આપે બોલેલા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન જરૂર દબાવશો।